Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. Today in 11th Commerce Accountancy, we are starting with the fourth part of chapter number 2, dual effect of transactions and types of accounts. We have already uploaded 3 different parts for this particular chapter. In part number 1, we have discussed the meaning of business transaction, classification, and we have also tried to solve illustration number 1, where we have discussed whether the transactions are economic in nature or non-economic in nature. Then in part number 2, we have discussed identification of cash and credit transactions, as well as we have also tried to solve illustration number 2, when we have tried to bifurcate whether the transactions are cash in nature or credit in nature. In the same, we have already discussed voucher, their meaning, types and its components. In part number 3, we have seen one point, that is dual effect of transactions, and also solved illustration number 3, where there are different type of 15 entries and we have tried to solve that. Whether the transaction have in real sense the dual effects or not, we have tried to solve that, and successfully we have completed 3 different parts for this particular chapter. I hope you have seen all these 3 parts in detail and tried to make notes from it. Now we are starting with the fourth part, which is the most important one, because in this particular part we are going to discuss types of accounts. In any kind of transactions, when we are identifying which kind of accounts are there, if we do it in correct manner, then we are going to score full marks from this. So this is the most important one. I expect every student will see it till the end of this particular part, and if you are going to see that by the end of it you are going to get full marks in examination, and you are going to make every entry correct when you are appearing for the examinations. I got some requests from the students. Please explain when you are the whole chapter in Hindi as well. So from today, I will use both the languages, English as well as Hindi. So for the extraordinary students, we are going to use English, and for few of them which are slow learners, so for them we are going to use Hindi. So let's start the most important point for the chapter, that is types of accounts. Now, basically there are two categories. Okay, so types are divided into two parts. One that is personal account and second that is impersonal account. Now, impersonal account again have two categories, one that is real and second is nominal. So in examination अगर आपसे पूछा जाए कि how many types of accounts are there, so the answer is two types of accounts are there, one that is personal account and second is impersonal. अगर एग्जाम में ऐसा पूछा गया कि आपको कितने अकाउंट्स के टाइप्स पता है, तो दो ही टाइप आएंगे, एक आ जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट और सेकंड आ जाएगा कौन सा, इम्पर्सनल. इम्पर्सनल में भी दो टाइप्स होंगे, कौन कौन से, एक आ जाएगा रियल और एक आएगा नॉमिनल. अब ये सारे पार्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल. So here is the hierarchy. How many types of accounts are there? One that is personal account and second that is your impersonal account. Impersonal account has two types. One is real account and second is nominal account. Okay. Next, what is called as personal account? अब personal account किसे कहा जाएगा? जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन में डेटर्स या क्रेडिटर्स या तो फिर कोई एक पार्टी की बात की गई होगी तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा पर्सनल अकाउंट. ओके, तो कोई भी ऐसा पर्सन हो जो नेचुरल पर्सन हो या तो फिर लीगल आर्टिफिशियल पर्सन हो, दोनों की कौन सा कहा जाएगा? दोनों को पर्सनल अकाउंट ही कहा जाएगा. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, अकाउंट ऑफ प्रतीक, दैट मीन्स प्रतीक्स अकाउंट, विरल्स अकाउंट,
सिद्धार्थ अकाउंट, धर्मेंद्र's अकाउंट, यज्ञेश अकाउंट या तो फिर आकाश अकाउंट. All have their different names. So for example, Pratik has purchased goods from your shop, then you are going to write in Pratik's account only. Okay. So on this particular name, you have started an account. Account means the account which has debit and credit sides, and you are going to make entry in that because we are following dual effects of transaction system, dual entry system. Okay. So इसमें क्या आ जाएगा, सिंपल, अगर किसी भी आदमी का नाम लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल प्रतीक ले लो, येशा ले लो, विरल ले लो, निक्की ले लो, कोई भी एक नाम ले लो, अगर किसी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है तो इसको कौन सा अकाउंट बोल जाएंगे, उसे बोलेंगे हम पर्सनल अकाउंट. क्लियर. नाउ अब इसमें एक और वर्ड यूज हुआ था, एक तो ये था कि नेचुरल पर्सन और दूसरा था लीगल आर्टिफिशियल पर्सन. अब किसे लीगल आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम कोई एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने एक किराना स्टोर स्टार्ट किया और किराना स्टोर का नाम हमने रखा है लक्ष्मी किराना स्टोर. तो ये लक्ष्मी किराना स्टोर है, तो आप तो जो बिल बनाओगे तो उसके ऊपर तो क्या प्रिंटेड आएगा, लक्ष्मी किराना स्टोर. इट मीन्स अगर कोई भी लीगल प्रोसीजर हो या तो फिर कोई भी काम करना हो, अगर किसी को पैसा आपको देना हो तो आपको क्या चेक पे क्या लिख के देगा, लक्ष्मी किराना स्टोर लिख के देगा ना. तो जैसे हम खुद को एक पर्सन की तरह गिनते हैं, वैसे ही अगर कोई अंडरटेकिंग या तो कोई बिजनेस चल रहा है और जिसमें ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो उसे भी क्या बोला जाएगा, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बोला जाएगा. पता चला. फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा किसी को एक सोसाइटी का नाम रखते हैं नवजीवन सोसाइटीज अकाउंट, या तो फिर एक सिंपल चीज समझ लो, HM पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स अकाउंट. समझ गए. इसे आप क्या गिनोगे, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन गिनोगे. ओके. सो बेसिक पर्सनल अकाउंट अगेन are divided into two parts. One that is in the names of the person. If the account is there, then it is called as personal account. And if any business undertakes a transaction with a legal artificial person, that is also considered as a personal account. Okay. See the few examples. First one, that is Bank of Baroda account, Union Bank account, Citibank account, HDFC Bank account, LIC account, any mutual fund accounts. Okay. Sher Khan account, Navjeevan Society account, Pancham Blossoms account. So these are the types of different accounts which will be considered as a legal artificial person. Okay. नेक्स्ट वन, आई होप ये आपको पता चल गया होगा पर्सनल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आएगी. अगर किसी भी आदमी का नाम आपको दिखे तो सिंपल ये चीज समझ लो कि वो कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा. क्लियर. सेकेंड, नाउ रियल अकाउंट. व्हाट इज कॉल्ड एज रियल अकाउंट. रियल अकाउंट दैट मीन्स द अकाउंट विच इज रिलेटेड विद द असेट्स और गुड्स. ओके. तो इसमें कौन कौन सी चीजें आएगी, दो चीजें आएगी, एक आ जाएगा आपका गुड्स और सेकंड आएगा आपकी असेट्स. अब असेट्स में भी फिर आप देखोगे तो कौन कौन से टाइप है, दो टाइप आ जाएंगे, एक आ जाएगा टेंजिबल, एक आ जाएगा इंटेंजिबल. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज गुड्स अकाउंट. अब गुड्स में कौन कौन सी चीजें आएगी, एक चीज समझो, अगर आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे आपकी एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप रेडीमेड क्लोथ्स बनाते हो, आप शर्ट बेचते हो, तो बिजनेस स्टार्ट किया आपने, पूरे साल काम किया, बाय एंड ऑफ द ईयर आपके पास 5,000 शर्ट पेंडिंग में पड़ी हुई है, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे क्या बोला जाएगा, गुड्स बोला जाएगा. तो अगर वो गुड्स है तो गुड्स को क्या कंसीडर करेंगे हम, स्टॉक कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो सेल आउट नहीं हुआ है, तो उसे क्या बोला जाएगा, स्टॉक बोला जाएगा. अगर स्टॉक है या तो फिर गुड्स है जिसकी फ्यूचर में आपको कुछ वैल्यू मिल सकती है, तो वो सारी चीजें कौन सी कंसीडर होगी, रियल अकाउंट कंसीडर होगी. क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली वो क्या है, वो आपके लिए एक असेट्स है. पता चला. सो दैट विल बी कंसीडर एज योर असेट्स ओनली. ओके. सो see here, products which are dealt with by the businessman are treated as goods. So all the goods which are treated over here will be considered in a real account. For example, purchase account, sales account, purchase return account, sales return account,
goods withdrawn for personal purpose, that means drawings account. Everything which are related with the goods will be considered as a real assets. उसे क्या बोला जाएगा? रियल असेट्स बोला जाएगा. अब रियल असेट्स में भी दो पार्ट्स है. अब सेकंड देख लो. सेकंड क्या है? असेट्स अकाउंट. नाउ व्हाट इज कॉल्ड एज असेट्स अकाउंट? तो आपको पता है असेट्स के दो टाइप्स है. कौन कौन से? एक है टेंजिबल और दूसरा कौन सा है? इनटेंजिबल. अब टेंजिबल मतलब क्या? द थिंग्स विच यू कैन टच, विच यू कैन फील. मतलब आप ऐसी चीज समझ लो कि जिसको आप छू सकते हो और जिसको महसूस कर सकते हो. पता चला? जैसे लैंड ले लो, बिल्डिंग ले लो, मशीनरी, व्हीकल्स, फर्नीचर. ऑल दीज थिंग्स आर टेंजिबल इन नेचर. जिसे आप छू सकते हो, जिससे आप कुछ काम करवा सकते हो. ओके, दिस इज टेंजिबल इन नेचर. आप उसे देख सकते हो, छू सकते हो, उसे महसूस कर सकते हो. नेक्स्ट वन, दैट इज इनटेंजिबल इन नेचर. नाउ व्हाट इज इनटेंजिबल? तो जो चीज आ गई आपकी गुडविल. गुडविल मतलब आपने बहुत सारे सालों तक यहाँ पे काम किया, तो जैसे कि आपकी कोई ब्रांड का नेम बन जाता है. फॉर एग्जांपल एच.एम. पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल. सो इट हैज स्टार्टेड इन द ईयर 1978. तो 1978 से लेके 2019 तक वो कंटिन्यूअसली वर्किंग कर रही है, तो उसकी एक गुडविल तो होगी. पता चला? तो उसे क्या बोला जाएगा? इट्स एन असेट. असेट फॉर अ बिजनेस. ओके, स्कूल इंडस्ट्री है उसके लिए वो एक असेट हुई कि यहाँ पे अगर कोई भी बिजनेस परचेज करने आएगा, कोई ये स्कूल खरीदने आएगा, तो बोला जाएगा कि मैंने इतने साल से ये पायोनियर स्टार्ट किया और यहाँ तक लाया, इसकी ये ब्रांड वैल्यू है, तो इसकी ये गुडविल है. तो ये गुडविल का उसको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा. ओके, सो दिस इज इनटेंजिबल इन नेचर. फिर क्या आ गया? पेटेंट आ गया, कॉपीराइट आ गया, ट्रेडमार्क आ गया. ऑल दिस थिंग विल बी कंसिडर एज अ गुडविल और the things will be considered as a intangible assets in nature. तो ये intangible assets जो है वो real account के types है. Okay, next one, third and the last one, that is nominal accounts. Now what is called as nominal accounts? To continue or to perform your day-to-day operations, whatever income or expenses you are going to incur, that will be considered as your nominal accounts. मतलब कि अगर आप कोई भी बिजनेस चलाते हो और उसका एक रूटीन ऑपरेशन करते हो, तो वो ऑपरेशन रूटीन में चलाने के लिए आपको जो भी इनकम या तो फिर एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, जिससे कि आपका प्रॉफिट होगा या तो फिर लॉस हो गया, लॉस होगा. तो वो सारी चीजों के लिए जो रूटीन में आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी खर्चे के लिए या तो फिर मुनाफे के लिए, तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे सिंपल बोला जाएगा नॉमिनल अकाउंट. पता चला? पहला था पर्सनल अकाउंट, सेकंड था आपका रियल अकाउंट और तीसरा कौन सा था? नॉमिनल अकाउंट. रियल अकाउंट में भी दो थे. कौन सा? वन ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स, सेकंड असेट्स. ओके, नाउ nominal account again has two types. One, accounts of income, and second, accounts of expenses. Now what is accounts of income? Accounts of income मतलब क्या? अगर आपको कहाँ कहाँ से इनकम हो सकती है बिजनेस में, तो पहला देख लो इंटरेस्ट रिसीव्ड. अगर आपने किसी को कुछ पैसे दिए हैं और कैपिटल दी है, तो उस पे अगर आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है तो उसे क्या बोला जाएगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड. सेकेंड, डिस्काउंट रिसीव्ड. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी जगह पे जा रहे हो गुड्स परचेज करने के लिए और उस पे अगर कोई सेलर आपको डिस्काउंट देता है जो प्रिडिक्टेबल नहीं था, तो वो डिस्काउंट आपको मिला, तो उसे इनकम कंसिडर किया जाएगा, तो उसे क्या बोला जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड. फिर है नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव्ड. अब डिविडेंड है जो आपके लिए थोड़ा नया वर्ड होगा. नाउ डिविडेंड किस पे पे किया जाता है? डिविडेंड पे किया जाता है इक्विटी शेयर्स पे और प्रेफरेंस शेयर पे. इट मींस जब बिजनेस कोई एक कंपनी होगी और कंपनी के आप क्या होगे? शेयर होल्डर्स होगे. या तो आप इक्विटी शेयर होल्डर होंगे या तो फिर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे. तो उसको ईयर एंड में जो प्रॉफिट होता है उसमें से थोड़ा पार्ट मिलता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? डिविडेंड रिसीव्ड. नेक्स्ट वन, दैट इज रेंट रिसीव्ड. अब रेंट रिसीव मतलब क्या? अगर आपने कोई बिजनेस किया है तो उसके अंदर आपको कोई किसी को लीज पे आपने अपनी प्रॉपर्टी दी, तो दैट विल बी कंसिडर एज योर रेंट रिसीव्ड. ओके, नेक्स्ट वन, ब्रोकरेज रिसीव्ड. अब ब्रोकरेज मतलब क्या? आप अगर किसी को कोई चीज किसी को बेचनी है या तो किसी को कुछ खरीदनी है और आज आप इंटरमीडिएट होके बीच में कुछ दलाली का काम करते हो, तो उसे क्या बोला जाएगा? ब्रोकरेज बोला जाएगा.
तो ये सारी जो इनकम्स है जो रूटीन बिजनेस में डे टू डे ऑपरेशंस में होती है उसे क्या कहा जाएगा? अकाउंट्स ऑफ इनकम। नेक्स्ट वन दैट इज अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस लाइक वेजेस, जैसे कोई आप मजूरी दे दो उसे बोला जाएगा वेजेस। नेक्स्ट आ गया कैरेजेस। अब कैरेजेस मतलब क्या? कोई भी गाड़ी भाड़ा अगर आपका होगा तो उसे बोला जाएगा कैरेजेस। नेक्स्ट इज पोस्टेज एक्सपेंसेस। पोस्टेज मतलब अगर आप टेलीग्राम करते हो किसी को, या तो फिर आप किसी को पोस्ट कार्ड भेजते हो, आप किसी को चिट्ठी भेजते हो, वो सारे एक्सपेंसेस हैं। आप किसी को कुछ चीज़ें कुरियर करते हो, वो सारे किस में कंसीडर होंगे? वो कंसीडर होंगे पोस्टेज एक्सपेंसेस में। नेक्स्ट आ गया स्टेशनरी एक्सपेंसेस। आप डे टू डे ऑपरेशन चलाने के लिए जो भी स्टेशनरी का यूटिलाइजेशन करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई A4 पेपर्स ले लिए, नई पेन्स ले ली, रूरल ले लिए, या तो फिर आपके बिजनेस में किसी और चीज़ की ज़रूरत थी तो वो आपने नहीं ले ली, तो वो सारी चीज़ें कौन सी आ जाएगी? स्टेशनरी के रिलेटेड आ जाएगी। नेक्स्ट वन सैलरी एक्सपेंसेस। अब सैलरी एक्सपेंसेस मीन्स द पर्सन हु इज वर्किंग इन योर इंस्टीट्यूट एंड बाय एंड ऑफ द मंथ फॉर हीज mental work, not the physical one, mental work, whatever amount you are giving to him, that will be considered as a salary. कोई अगर आदमी आपके बिजनेस में काम कर रहा है तो उसको जो आप पैसे देते हो उसका मेंटल वर्क करने के लिए, ओके, फिजिकल नहीं, फिजिकली के लिए हम क्या देते हैं? वेजेस देते हैं। तो वो जो मेंटल वर्क करता है उसके लिए आप पैसे देते हो, उसे क्या बोला जाएगा? सैलरी एक्सपेंस बोला जाएगा। देन द टैक्सेस। टैक्सेस तो आपको पता ही होगा, सिंपल है। आप जो भी चीजें खरीदते हो उसके अंदर कोई भी टैक्सेस लगे हुए होते हैं। फॉर दैट देयर इज अ सेपरेट चैप्टर, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो नेक्स्ट चैप्टर है, वो हम टैक्सेस उसमें ज्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन दैट इज डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल आपने अगर एक मोटर व्हीकल परचेस किया है, फॉर एग्जांपल आपने एक कार परचेस की है बिजनेस के लिए, तो क्या कार आपने जो 10 लाख में ली है तो ये क्या 15 साल 20 साल तक चलेगी? और 15 साल 20 तक चलेगी तो उसके बाद उसकी वैल्यू क्या सेम ही रहेगी या तो फिर घटेगी या बढ़ेगी? तो उसकी वैल्यू में क्या होगी? कटौती ही होगी ना। तो वो जो कीमत उसकी घटती है तो वो कौन से बेसिस पर घटती है? हम क्या करते हैं? एवरी ईयर चार्ज करते हैं उसके अंदर डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन मतलब क्या? घसारा। अगर आप कोई चीज चलाते हो तो उसमें क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन लगेगा ना, तो वो आपको डिडक्ट करना है। देन डिस्काउंट अलाउड। व्हेन यू हैव सोल्ड सम गुड्स, आपने बेचा है तो उसके ऊपर अगर आपने डिस्काउंट दिया है देन इट विल बी कंसिडर एज अ डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस प्रीमियम। नेक्स्ट देख लो, इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब क्या? आपने अगर बिजनेस का कोई भी इंश्योरेंस लिया है या तो फिर कोई भी इंश्योरेंस पे किया है, फॉर एग्जांपल अगर आपने फायर इंश्योरेंस लिया होगा बिजनेस का, या तो फिर आपने अपनी प्रॉपर्टी का कुछ इंश्योरेंस लिया है, तो उसके ऊपर आप जो भी प्रीमियम भरते हो उसे क्या बोला जाएगा? इसे कहा जाएगा एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, बैंक चार्जेस, ऑल दिस थिंग्स, ऑल द एक्सपेंसेस which are there will be considered as a nominal accounts. मतलब all incomes and all expenses in routine business will be considered as a nominal accounts. तो सिंपल एक ही चीज याद रखनी है आपको, तीन टाइप्स के अकाउंट होंगे। एक आ जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट, इसमें दो टाइप्स के पर्सन होते हैं, वन होता है नॉर्मल पर्सन एंड सेकंड होता है लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। सेकेंड आएगा रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में भी आपको दो चीजें याद रखनी है, ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ असेट्स। ओके, असेट्स में फिर से दो, टेंजिबल, इंटेंजिबल। एंड थर्ड वन दैट इज योर नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में कौन आ जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में आएगा वो बंदा, मतलब वो चीज है कि जिसके लिए आपको रूटीन में इनकम या तो फिर एक्सपेंसेस होते हैं। टू रन योर रूटीन बिजनेस in the organization, all the expenses which are included will be considered as a nominal accounts. Okay, now here is one new sum illustration number 4. मैंने गलती से यहाँ पे 3 लिख दिया है, आप उसे 4 कर देना। illustration number 4, classify the following accounts and give explanation in brief. अब इसको देखो, ये सारे आपको 40 अकाउंट्स दिए हुए हैं। अब 40 अकाउंट्स आपको देखने हैं और उसके हिसाब से आपको बताना है कि ये अकाउंट्स का कौन सा टाइप है, पर्सनल है, नॉमिनल है या तो फिर रियल है। क्लियर? फर्स्ट वन, नवजीवन कॉमर्स कॉलेज अकाउंट। नाउ नवजीवन कॉमर्स कॉलेज अकाउंट, ये सोचो कौन सा अकाउंट होगा?
आप सिंपल ये चीज समझ लो कि ये एक कौन सा अकाउंट हो गया, नाम आया, पर्सनल अकाउंट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट वन दैट इज ड्राइंग्स अकाउंट। अब ड्राइंग्स कौन करता है? एक पर्सन ही तो करता है, तो उसे कौन सा अकाउंट बोला जाएगा? ड्राइंग्स अकाउंट। क्लियर? ओके, इसमें भी पर्सनल अकाउंट आ गया। नेक्स्ट वन दैट इज कैश अकाउंट। अब कैश है वो आपकी कौन सी है? वो आपकी असेट्स है, तो उसे कौन सा अकाउंट बोला जाएगा? रियल अकाउंट बोला जाएगा। नेक्स्ट वन इज डोनेशन अकाउंट। नाउ डोनेशन मतलब क्या? इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपेंस। आपने कहीं पे जाके डोनेशन किया है, तो उसे कौन सा कंसीडर कहा जाएगा? एक्सपेंस। इट मीन्स नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट वन दैट इज मशीनरी। मशीनरी जो है, मशीनरी ले लो, प्लांट ले लो, लैंड ले लो, बिल्डिंग ले लो, फर्नीचर ले लो, ये सारी चीजें क्या आ जाएगी? दिस इज कंसिडर एज योर असेट्स, और असेट्स का कौन सा होता है? रियल अकाउंट होता है। तो मशीनरी में क्या आ जाएगा? रियल अकाउंट। सेम वे फॉर लैंड, लैंड में क्या आ जाएगा? रियल अकाउंट। नेक्स्ट वन, राज मेडिकल स्टोर्स। नाम आ गया आदमी का, नाम आया मेडिकल स्टोर, तो आर्टिफिशियल पर्सन आ जाएगा, दैट मीन्स पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट इज सैलरी अकाउंट। अब सैलरी है, ये क्या है? एक्सपेंस है। डे टू डे रन करने के लिए बिजनेस आपको क्या चाहिए होगी? सैलरी चाहिए होगी, तो सैलरी क्या आ जाएगा? आपका एक्सपेंस आ जाएगा। नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ड। मतलब ये क्या हुई? आपका पूरा सामान आया, तो उसके अंदर आपने जो गाड़ी का भाड़ा दिया उसे क्या बोला जाएगा? कैरेज इनवर्ड। सो भाड़ा दिया है, एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस मतलब कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट देखो फर्नीचर। फर्नीचर मतलब क्या? योर असेट्स। असेट्स के लिए कौन सा अकाउंट होता है? असेट्स के लिए रियल अकाउंट होता है। कैरेज आउटवर्ड। अब देख लो, ऊपर कैरेज इनवर्ड था, यहाँ पे कौन सा है? कैरेज आउटवर्ड। मतलब आपने गुड्स सेल किया है और उसके ऊपर आपने कैरेज आउटवर्ड भरा हुआ है, आपने एडवांस में भर के यहाँ से गुड्स भेज दिया, तो उसे क्या बोला जाएगा? कैरेज आउटवर्ड। दैट इज ऑल्सो एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, तो उसे कौन सा अकाउंट कहा जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट वन इज स्टेशनरी अकाउंट। नाउ व्हाट इज स्टेशनरी? रूटीन वर्क के लिए यूज होगा, रूटीन एक्सपेंस है, तो ये नॉमिनल हो गया। वेजिस, रूटीन वर्क, नॉमिनल अकाउंट। कॉपीराइट अकाउंट। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सारे कौन से टाइप्स के अकाउंट है? रियल अकाउंट्स। और उसमें भी कौन से? these are related with the assets, and assets में भी intangible assets। clear? next, interest received। अब ये जो इंटरेस्ट मिलता है, ये रूटीन वर्क तो है ना, तो इसे कौन सा अकाउंट बोला जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट वन, यूनियन बैंक अकाउंट। आपने देखा होगा, तो पिछले में हमने डिस्कस किया था कौन सा? बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट। तो उसके अंदर कौन सा था? पर्सनल अकाउंट। तो बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट, यूनियन बैंक अकाउंट, ये सारे कौन से हो जाएंगे? दिस विल बी कंसिडर एज योर पर्सनल अकाउंट। नाउ नेक्स्ट इज रेंट पेड। नाउ व्हाट इज रेंट पेड? रेंट पेड, दैट मीन्स योर एक्सपेंडिचर। ऑल द एक्सपेंसेस विल बी कंसिडर एज अ नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट वन, रिलायंस शेयर्स अकाउंट। नाउ रिलायंस शेयर्स, दिस इज नॉट योर रूटीन बिजनेस। आप रिलायंस के शेयर हर बार थोड़ी ना परचेस करते हो, सो दिस विल बी कंसिडर एज योर असेट्स, और असेट्स के लिए कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। नेक्स्ट वन, डिस्काउंट रिसीव्ड, डे टू डे रूटीन बिजनेस, दैट मीन्स नॉमिनल अकाउंट। अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट, नेम आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर्सन हो गया, लीगल एंटिटी हो गया, तो इसको क्या बोला जाएगा? पर्सनल अकाउंट। नाउ नेक्स्ट इज बैड डेब्ट्स अकाउंट। अब बैड डेब्ट का कंसेप्ट क्या है? जैसे कि अगर हमने प्रिडिक्ट किया कि ये आदमी इतने पैसे दे देगा, अगर वो नहीं देता है तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा बैड डेब्ट्स। सो बैड डेब्ट्स इज योर रूटीन एक्सपेंडिचर। पूरे साल में समझ लो कि अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो 15,000 20,000 का तो बैड डेब्ट होना ही है, वो तो कंफर्म ही है, तो उसे क्या कहा जाएगा? दैट विल बी कंसिडर एज योर एक्सपेंस, रूटीन एक्सपेंस, तो नॉमिनल अकाउंट हो गया। नेक्स्ट वन, कर्णावती क्लब अकाउंट, नेम ऑफ द पार्टी इज देयर, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट वन, डेटर्स अकाउंट। अब देखो डेटर्स मतलब क्या? डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों कौन से हैं? दोनों है वो इंडिविजुअल, कोई आदमी का ही नाम होगा डेटर्स के लिए। समझो, डेटर्स मतलब जिसको, मतलब जो आपकी असेट्स साइड पे आएगा, आपको जिससे पैसे लेने हैं, तो वो पैसे लेने हैं, वो तो क्या नाम ही होगा ना पार्टी का, तो वो क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट। वैसे ही लिख लो क्रेडिटर्स अकाउंट, तो क्रेडिटर्स अकाउंट वो भी क्या है? पर्सनल अकाउंट।
नेक्स्ट वन उसके नीचे ही देख लो, नीलम बेंस अकाउंट है ना, नंबर 27. नाउ नीलम बेंस अकाउंट is also considered as there is a name, so it's a personal account. अब यहाँ पे आते हैं, goods distributed as sample account. अब हमने क्या किया, हमने goods sell किया है as a sample. अगर हमने ये चीज as a sample दी है तो मतलब ये आपका रूटीन वर्क है, और इसके अंदर क्या होगा, आपने सैंपल में दी है तो इट्स एक्सपेंस फॉर द बिजनेस. एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट. नेक्स्ट वन दैट इज फैक्ट्री एक्सपेंस, सिंपल लिख ही दिया है एक्सपेंस, रूटीन वर्क, नॉमिनल अकाउंट. नेक्स्ट वन दैट इज डेप्रिशिएशन. डेप्रिशिएशन मतलब क्या, अगर आपने फॉर एग्जांपल मशीनरी ली है तो उसके ऊपर जो डेप्रिशिएशन काउंट करते हो वो आप एवरी ईयर काउंट करोगे. जैसे कि आपने एक मोटर व्हीकल लिया था तो उसके ऊपर भी आप एवरी ईयर चार्ज करते थे ना डेप्रिशिएशन. So all that will be considered as your expense. These are your routine expenses. Goods given for the advertisement account. Again goods given. Okay, तो इसमें क्या आ जाएगा, this is your routine work, routine business, so nominal account. Next one number 32, dividend received account. आपको dividend मिला है, routine business, okay, nominal account. Commission received, nominal account. Goodwill, goodwill, patent, trademark, copyright, all are assets, real account. कमीशन अलाउड अकाउंट. नाउ व्हाट इज कमीशन अलाउड अकाउंट, आपको कमीशन मिला है, आपको अलाउ हुआ है, डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट अलाउ हुआ है, ये दोनों एंट्री साथ में देख लो. बोथ आर नॉमिनल अकाउंट बिकॉज इट्स अ रूटीन वर्क. नेक्स्ट वन दैट इज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. आपको ये पैसे मिलने वाले हैं, बट बिल्स रिसीवेबल विल बी ऑन द नेम ऑफ समवन, ये किसी के नाम पे होंगे, तो इसे क्या बोला जाएगा, अगेन इट्स अ पर्सनल अकाउंट. नेक्स्ट वन दैट इज योर स्टॉक. स्टॉक दैट मीन्स गुड्स, गुड्स मीन्स रियल अकाउंट. क्योंकि आपको पता था रियल अकाउंट में दो टाइप्स थे, वन दैट इज रिलेटेड विद गुड्स, वन दैट इज रिलेटेड विद असेट्स. क्लियर. स्टॉक अकाउंट इज योर real account, assets account. Next one that is your capital. Now capital is brought by the individual itself, so it's a personal account. And last one that is purchase account. Purchase account, that means you have purchased goods, goods that means your stock, and stock will be considered as your assets. So this is your real account. So we have already discussed the answers. अब ये आंसर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, उसके रीजंस पीछे दिए हुए हैं, तो मैं आपको बोलता हूं इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो. इन 5 सेकेंड्स आई एम गोइंग टू चेंज इट. देख लो यहाँ पे 1 to 10 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. नेक्स्ट वन, कैरेज आउटवर्ड से लेके अहमदाबाद ब्रांच तक, ये पूरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. थर्ड, 21 to 30 बैड डेब्ट्स अकाउंट से रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. And last, the fourth one, goods given for the advertisement account से लेके purchase account तक. So all the entries we have discussed today are so much important. यही सारी चीजें आपको 4th चैप्टर 5th 6th सारे चैप्टर्स में काम लगेगी. आज के वीडियो का इम्पोर्टेंस बहुत है, इसे एटलीस्ट 2 या 3 टाइम्स देखना है. ओके, आप पूरा देखोगे आपका ही बेनिफिट होगा. दिस इज फॉर ओनली फॉर योर बेनिफिट्स बिकॉज this is a duty which I am doing for the students. I expect कि अगर मैं 2-3 घंटे बैठ के ये चीज़ें बनाता हूँ तो this is my responsibility, वो मैं पूरी करता हूँ. तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एटलीस्ट ये वीडियो एंड तक देखो, उसे ठीक से पूरा समझो, और कोई भी डाउट है जस्ट मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन. आई होप यू हैव लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. Please share it to the maximum people who are studying in 11th and 12th commerce. I am uploading the videos related with the subject of economics and accountancy. That's all for today. Thank you so much. Jai Hind.